JSP action tags. Okay. We have covered the implicit objects JSP में, scripting elements, life cycle of JSP. Okay, life cycle of JSP. Then JSP scripting elements में scriptlet tag, expression tag and declaration tag. Then we have seen 9 implicit objects in JSP: request, response, config, application, session, page context, page and exception. Then JSP directive elements. कितने directive है? 3 directives: page, include and taglet. Then JSP exception. See, JSP exception handling in JSP is done by two attributes of page directive, that is error page and is error page. Error page and is error page. These are the two attributes of page directive to handle exception in JSP. Okay. Now the next topic is action elements. Okay. Action elements. So in action elements, different tags are there. Forward tag, include, bean class, use bean, set and get property, displaying applets in JSP. So let's start this JSP action tag. See, JSP action tags, jitne bhi, each and every action tag is used to perform some specific task, some specific functionality, to perform some specific function. These action tags are used in JSP. The action tags are used to control the flow between pages and to use Java Bean. See, suppose we have created one JSP page. Okay. So in that JSP page, we are using Java Bean. Bean means it is a small part of coding. It is a small part of coding. Bean means many objects are encapsulated into one object. एक object के अंदर बहुत सारे object encapsulated है. That is called as bean. The bean, it is a small part of coding. इसका नाम bean क्यों रखा गया? Java, at the time of developing Java, ठीक है, at the time of developing Java, developers क्या करते? They used to drink कॉफी. ठीक है, बहुत ज्यादा कॉफी पीते थे तो जावा डेवलप करने के टाइम पे, तो स्मॉल जो कॉफी का जो बीन्स है, ठीक है, कॉफी का जो बीन्स है, उन्होंने वही नाम रख दिया उसका, बीन. ठीक है, तो इसलिए बीन नेम उसका रखा गया. बीन, कॉफी बीन्स के हिसाब से बीन रखा गया, बिकॉज दे यूज टू ड्रिंक लॉट ऑफ कॉफी. तो बीन मीन्स small part of coding. Okay, और small part of coding. And bean का meaning क्या है? Many objects are encapsulated into one object, that is called as bean. So control the flow between pages में क्या है? बहुत सारे beans है, बहुत सारे objects present है, right? हम लोग object create करते, तो in pages, coding के जो pages है, beans present है, means many objects are present. Okay, तो वो फ्लो मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दिस एक्शन टैग्स आर यूज. बीन का फ्लो मींस ऑब्जेक्ट्स का फ्लो हैंडल करने के लिए दिस एक्शन टैग्स आर यूज. डिफरेंट एक्शन टैग्स, ठीक है, सबके अपनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. फॉरवर्ड, इंक्लूड, ठीक है, जेएसपी कोलन, कैसे लिखना है इसको? फॉरवर्ड टैग यूज करना है अगर तुमको. ये एक्शन टैग्स है सब. फॉरवर्ड, इंक्लूड, यूज बीन, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी, प्लगइन, पैरम, फॉल बैक. ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल. तो टोटल 8 कितने हैं? 8 एक्शन टैग्स है प्रेजेंट इन जेएसपी. तो फॉरवर्ड टैग क्या है? फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू अनदर रिसोर्स. ठीक है, जैसे रिक्वेस्ट डिस्पैचर में भी वी हैव सीन टू मेथड्स, इंक्लूड एंड फॉरवर्ड, राइट? तो फॉरवर्ड का वही काम है, फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टू अनदर पेज और अनदर रिसोर्स. Include, it is same as like request dispatcher method. Forward includes another resource. If you want, suppose one JSP page is there, so JSP page में you want to include any other page content. ठीक है, तो ये this tag we can use, include tag. use bean if you want to create object, bean object, or you want to locate bean object, this use bean is used. ठीक है, create करने के लिए bean का object. To create a bean object, use bean tag is used. Set property, if you want to set the value of bean, जो object तुमने बनाए हो bean object, ठीक है, उसका value set करना है तो set property. Get property, print the value जो set की वो तुम्हें print करना है. ठीक है,
प्रिंट करना वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द बीन, तो गेट प्रॉपर्टी। प्लगइन, अगर तुमको यू वांट टू, अगर तुम्हारा जेएसपी का पेज है, अगर तुमको उसमें क्या करना है, जेएसपी पेज में एम्बेड अनदर कंपोनेंट सच एज एप्लेट, एप्लेट को एम्बेड करना है तुम्हारे जेएसपी के पेज में, तो प्लगइन टैग यूज करके वी कैन एम्बेड एप्लेट इन आवर जेएसपी कोड। ठीक है। देन पैरम सेट्स द पैरामीटर वैल्यू टू यूज इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड मोस्टली, पैरामीटर वैल्यू सेट करने के लिए। तो ये जो पैरम एट्रीब्यूट है मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, ये फॉरवर्ड एंड इंक्लूड टैग के साथ में। दिस पैरम एट्रीब्यूट, पैरम वैल्यू कहाँ पे यूज होगा, इट इज मोस्टली यूज इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड, फॉरवर्ड एंड इंक्लूड टैग में। ठीक है। फॉल बैक, सी अगर कोई भी तुम्हारा एरर मैसेज प्रिंट करवाना है, सपोज इफ प्लगइन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो अगर एरर मैसेज प्रिंट करवाना है तो वी विल यूज दिस फॉल बैक। एंड फॉल बैक इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ जेएसपी प्लगइन। फॉल बैक कहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, प्लगइन में यूज करेंगे टू प्रिंट दी फॉल बैक मैसेज, लाइक सपोज इफ प्लगइन इज नॉट वर्किंग, ठीक है, तो वो मैसेज के लिए हम लोग वी विल यूज फॉल बैक। तो पैरम इट इज मोस्टली यूज इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड एक्शन टैग, एंड दिस वन fallback, fallback it is used in plugin, plugin में यूज होता है। now see the first tag is forward tag। okay, first tag कौन सा है, forward tag, forward action tag। तो यूज टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, अनदर रिसोर्स मीन्स कोई भी पेज पे अगर तुमको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है, वेदर इट इज जेएसपी पेज और एचटीएमएल पेज और एनी अदर पेज, ठीक है, वहां पे तुमको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर रिसोर्स, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, तो फॉरवर्ड टैग इज यूज, फॉरवर्ड एक्शन टैग। यहाँ पे देखो अभी सिंटैक्स ऑफ जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर, ये सिंटैक्स है इसका। इफ यू वांट टू यूज फॉरवर्ड एक्शन टैग इन योर जेएसपी पेज, कैसे लिखना है, जेएसपी कोलन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या है, टैग है, एक्शन टैग है, फॉरवर्ड इज एक्शन टैग। ठीक है। फिर पेज, फॉरवर्ड एक्शन टैग का पेज एक एट्रीब्यूट है, पेज एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, इक्वल टू रिलेटिव यूआरएल। यहाँ पे यूआरएल लिखेंगे मीन्स जो पेज में हम लोग को फॉरवर्ड करना है रिक्वेस्ट का एड्रेस आएगा, या और द पेज नेम, पेज नेम पास कर सकते हो, ठीक है, जो भी पेज में तुमको फॉरवर्ड करना, और स्पेसिफिक यूआरएल लाइक google.com एनी अदर यूआरएल यू कैन पास हियर। ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया, एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन टैग का सिंटैक्स है इतना, दिस वन परसेंटेज भी इक्वल फिर एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड टैग में तुम पेज एट्रीब्यूट और एक्सप्रेशन दोनों मेंशन कर सकते हो। सिंटैक्स ऑफ जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग विद पैरामीटर, पैरामीटर के साथ में उसके, अभी देखो ये सेम लाइन है, अगर पैरामीटर तुमको कोई सेट करना है पेज का पैरामीटर, तो जेएसपी कोलन, ये तो फॉरवर्ड एक्शन टैग है, फॉरवर्ड एक्शन टैग है, पैरामीटर जो एक्शन टैग है यूज टू सेट द पैरामीटर, पैरामीटर सेट करने के लिए पेज का। मोस्टली ये जो पैरम एक्शन टैग है यूज इन फॉरवर्ड एंड इंक्लूड एक्शन टैग, ये जो पैरम एक्शन टैग है, ठीक है, दैट इज यूज टू सेट द पैरामीटर वैल्यू, मोस्टली कहाँ पे यूज होता है, ये फॉरवर्ड एक्शन टैग एंड फॉरवर्ड एंड इंक्लूड एक्शन टैग में, फॉरवर्ड एंड इंक्लूड एक्शन टैग में। तो यहाँ पे देखो आई एम सेटिंग द पैरामीटर, तो पैरामीटर सेट करने के लिए पहले फॉरवर्ड ले लिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो पेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं उसका पैरामीटर सेट करना है, सपोज जीएसपी कोलन पैरम, उसके एट्रीब्यूट्स है नेम वैल्यू। ठीक है। तो नेम आई एम व्हाट आई एम, नेम आई एम गिविंग पैरामीटर name equal to parameter name, whatever name you can give. Then value, name and value are the attributes of param action tag. ठीक है, name and value, name I have taken parameter name, value parameter value, और you can pass any expression also यहाँ पे, अगर नहीं सेट करना तो एक्सप्रेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी याद रखोगे तो इनफ है यहाँ तक। देन फॉरवर्ड टैग क्लोज हो गया, तो इसमें सिर्फ इतना ही दिखा रहा है कि सिंटैक्स विदाउट पैरामीटर, सिंटैक्स ऑफ जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग विद पैरामीटर, अगर पैरामीटर सेट करना है तो पैरम टैग इज यूज। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सी देयर आर टू जेएसपी पेजेस,
ठीक है, एक है index.jsp और एक सपोज करो print_date.jsp। तो यहाँ पे वी विल यूज फॉरवर्ड एक्शन टैग। ठीक है, फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर, फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर। So simply in this example, we are simply forwarding the request to the printDate.jsp file. कहाँ पे forward करो request? printDate.jsp file में। सिंपल सा कोडिंग है, HTML बॉडी मैंने हेडर लिया हुआ है, दिस इज इंडेक्स पेज। ये सिंटैक्स है ना विदाउट पैरामीटर का और फॉरवर्ड एक्शन टैग JSP कोलन फॉरवर्ड एक्शन टैग का नेम है ये। ठीक है, नल पेज इज एट्रीब्यूट। जो पेज में तुमको क्या करना है, फॉरवर्ड करना है तुम्हारा रिक्वेस्ट, वो पेज का नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, printDate.jsp। तो ये पेज है वो। ठीक है, ये पेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इसको फॉरवर्ड करेगा। ये पेज में क्या दिया हुआ है, क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम लोग, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, तो करंट डेट एंड टाइम प्रिंट करवाने के लिए आउट आउट इज द, यहाँ पे देखो ये कौन सा टैग है, कैन एनीवन आंसर, ओनली आई एम आस्किंग दी। यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड करवा रहे हैं हम लोग, कौन से पेज में, वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट टू अनदर पेज, वी आर फॉरवर्डिंग द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, और वो कैसे करवा रहे, विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड एक्शन टैग, विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड एक्शन टैग। और कौन से पेज में, प्रिंट डेट। प्रिंट डेट एक पेज हम लोग वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, वन जेएसपी पेज ऑफ नेम क्या है, प्रिंट डेट वी हैव क्रिएटेड। तो इन प्रिंट डेट व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ जब यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा वो, तो क्या प्रिंट होगा, करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, कैन एनीवन आंसर, आई एम आस्किंग ओनली द टैग नेम। यहाँ पे कौन सा टैग, वो ये टैग का नेम क्या है, स्टार्टिंग में परसेंटेज एंड एंडिंग में परसेंटेज मीन्स कौन सा टैग है ये, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग टैग राइट, दिस वन वी हैव कवर्ड ना, दिस सी स्क्रिप्टलेट टैग राइट, स्क्रिप्टलेट टैग है नहीं, दिस वन स्क्रिप्टलेट टैग है नहीं, ये स्टार्टिंग में परसेंटेज एंडिंग में परसेंटेज का साइन मीन्स ये कौन सा टैग है, स्क्रिप्टलेट टैग है। स्क्रिप्टलेट टैग में हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टलेट टैग इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन योर जेएसपी पेज। स्क्रिप्टलेट टैग इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट जावा कोड इन जेएसपी पेज। ठीक है, तो अभी जेएसपी के पेज में जावा का कोड तुमको एग्जीक्यूट करवाना है, तो स्क्रिप्टलेट टैग का सिंटैक्स कैसा है, टैग के बीच में स्टार्टिंग में परसेंटेज का सिंबल, एंडिंग में परसेंटेज का सिंबल। ठीक है, नाउ क्या प्रिंट करवाना है हम लोग को, प्रिंट करवाना था आउट। आउट इज द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, राइट, टू राइट एनी डेटा, आउट इज द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, यस और नो, आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है ना, उसका काम क्या है, आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का, टू राइट एनी डेटा, राइट करवाना है डेटा मुझे। ठीक है, करंट डेट एंड टाइम जो है राइट करवाना है, तो आउट इज द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। जेएसपी का पेज है, देयर इज नो मींस there is no need to explicitly declare this implicit object. Out belongs to http servlet response, http servlet response को belong करता है ना out implicit object। तो out dot print method, ठीक है, print method क्या करें, we use to print the data, today is current date and time if you want। तो यहाँ ये इसका पूरा पैकेज का पूरा पाथ है, java dot util dot calendar, calendar java is the package, main package, util sub package, calendar class है, get instance method and get time method, get instance method and get time method। ठीक है, ये पूरा इसका पाथ लिखे हम लोग ने, बॉडी टैग क्लोज एंड एचटीएमएल टैग क्लोज। सिंपल सा है, अगर इसको इफ वी विल रन दिस प्रोग्राम वी विल गेट द करंट डेट एंड टाइम। टुडे इज 29th July, थर्सडे, ओके, एंड द करंट टाइम, दिस इज क्लियर, दिस वन फॉरवर्ड एक्शन टैग विदाउट पैरामीटर। दो एग्जांपल मतलब वी हैव सीन टू पेजेस, ओके, दो पेजेस में कैसे रिक्वेस्ट पास फॉरवर्ड करना है फ्रॉम वन रिसोर्स टू दी अनदर रिसोर्स बाय यूजिंग फॉरवर्ड एक्शन टैग। A page is the attribute of forward tag, okay, to define the page name. Now the next action tag is, we will see this one also, forward action tag with parameter. With parameter also you can use this tag, forward action tag. Okay,
in this example we are forwarding the request to the same page. Okay, same example we are taking print date dot JSP, but with parameter. Okay, with parameter, and print date JSP file prints the parameter value with date and time. यहाँ पे देखो see this coding, two JSP pages again, index and print date. कहाँ पे फॉरवर्ड करवा रहे रिक्वेस्ट? प्रिंट डेट डॉट जेएसपी में. ठीक है, देन पैरामीटर सेट कर रहे हैं हम लोग, जेएसपी कोलन पैरम. पैरम इज एक्शन टैग which is mostly used in forward and include tag, okay, to set the parameter value. So param JSP colon param name and value we have set. Name equal to name as it is, we have taken name equal to name and value equal to java.t.com. ये साइट का नाम लिखा है. देन फॉरवर्ड एक्शन टैग क्लोज हो गए. यहाँ पे क्लोज कैसे करना देखो, स्लैश है तुम्हारा, फॉरवर्ड स्लैश एंड देन क्लोज द टैग. ठीक है, टैग क्लोज हो गया, क्लोज एचटीएमएल टैग क्लोज. नाउ सी द प्रिंट डेट फॉरवर्ड करना है ना, तो एक और पेज क्रिएट करना पड़ेगा हम लोगों को ऑफ दिस नेम. सेम नेम का एक पेज क्रिएट करना होगा. ठीक है, जब भी देन ओनली इट विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू दिस पेज. तो प्रिंट डेट डॉट जेएसपी, जेएसपी एक्सटेंशन है जेएसपी फाइल का, डॉट जेएसपी इज द एक्सटेंशन. तो स्क्रिप्टलेट टैग अगेन स्क्रिप्टलेट टैग में डिफाइन करेंगे ना. ठीक है, ये जो है स्क्रिप्टलेट टैग जावा का कोड प्रिंट करने के लिए अगेन करंट डेट एंड टाइम हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, उसके लिए ये सेंटेंस है. देन इफ यू वांट टू सी पैरामीटर तुमको फेच करना है तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन टैग में हम लोग क्या करेंगे, मेथड को हम लोग मोस्टली एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन टैग, दिस इज एक्सप्रेशन टैग ना, राइट. कैसे आइडेंटिफाई हुआ, हाउ यू विल आइडेंटिफाई दिस इज एक्सप्रेशन टैग, बाय लुकिंग एट दिस सिंटैक्स, कैसे लिखा हुआ है. स्टार्टिंग में यहाँ पे इक्वल का साइन है, मीन्स ये कौन सा टैग है. ओनली आई एम आस्किंग द टैग नेम, दिस इज एक्सप्रेशन टैग. कौन सा टैग है, एक्सप्रेशन टैग है. यस, see now what we are doing, we are using request means it is implicit object in JSP, implicit object JSP का request. ठीक है, डॉट गेट पैरामीटर मेथड, उसमें हम लोग क्या फेच कर रहे हैं, ये वाला पैरामीटर नेम क्या है, नेम जो सेट किए. ठीक है, तो इसमें what we are doing in this example, we are forwarding the request to the print date dot JSP file with पैरामीटर के साथ में सेट पैरामीटर यूज किए, एंड प्रिंट डॉट जेएसपी फाइल प्रिंट द पैरामीटर वैल्यू विद डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम तो आएगा ही बाय दिस लाइन. ठीक है, और पैरामीटर वैल्यू भी प्रिंट करेगा वो. ठीक है, ये यूज किए. पैरामीटर वैल्यू क्या है, java.t.com. ठीक है, पैरामीटर नेम यहाँ पे पास किए ना, तो वी विल गेट आउटपुट में दो आएगा, करंट डेट एंड टाइम and parameter value. तो parameter value we have set java.t.com. So we will get output क्या आएगा, current date and time and parameter value. ठीक है, तो parameter value java.t.com है. तो forward action tag we can use, ऐसा mandatory नहीं है, compulsory we have to set the parameter, it is not mandatory. ठीक है, तो दो वे है, एक forward action tag without parameter you can use and with parameter also you can use, without parameter and with parameter. अगर विथ पैरामीटर करना है तो पैरम, जेएसपी कोलन पैरम, नेम एंड वैल्यू यू कैन सेट.